element. And suppose that if here I ask you, is the element of A? So definitely you will say E is the element of A. This symbol is said to be belongs and is read as E belongs to A. Means E A का element है. Similarly, I is the element of A क्योंकि A एक ऐसा कलेक्शन है जिसमें वॉवेल्स हैं और इन कलेक्शन में वॉवेल्स में A E I O U है तो I भी A का ही एलिमेंट है so you will say I belongs to A. But if I say B belongs to A, then what is your answer? No. Okay, B is not the element of A, so you will just cut this belongs like this, and you will say B is not belongs to A. So this is the elements which are the collected units of the object. Now, the third point is the second was elements. Third is notation, notation of sets. Okay, notation of sets. The sets are represented by English alphabet A, B, C up to X, Y. किसी भी एक इंग्लिश अल्फाबेट से आप सेट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं. क्लियर. एंड फोर्थ, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट, रिप्रेजेंटेशन ऑफ how many ways you can represent such set. So there are two methods to represent. The number one is tabular form, and the second one is properties method. There are two methods to represent a set. The first one is tabular form and the second one is properties method. Now let us see what are the tabular form and what is properties method. In this method, all elements are written. All elements are written. All elements are written. ठीक है? In this form, all the elements are written in a curly bracket. All the elements are written in curly bracket and each element and each element and each element is separated by comma. ठीक है? In this tabular form, all elements are written and in a curly bracket and each element are separated by comma. But in this method, in this method, the all the elements are assigned by the single variable. In this method, properties of elements assigned by properties of elements assigned by
a variable in this method. प्रॉपर्टीज मेथड में जितने जो एलिमेंट्स हैं उनकी प्रॉपर्टी को किसी वेरिएबल के थ्रू असाइन करते हैं, जबकि इन दिस मेथड ऑल द एलिमेंट्स आर रिटन इन अ कर्ली ब्रैकेट सेपरेटेड बाय कॉमा. So let us see with the example. The question is example 1. Represent the following in tabular form. टेबुलर फॉर्म. अगर क्वेश्चन आपसे ऐसे बोल रहा है रिप्रेजेंट द फॉलोइंग इन टेबुलर फॉर्म और जिसमें फर्स्ट दे रहा है ए, फर्स्ट दे रहा है नेचुरल नंबर्स और या तो ऐसे कह दे कि ए इज अ सेट ऑफ नेचुरल नंबर. कैसे बोल दे इसको? ऐसे कह दे ए इज अ सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स. और सेकेंड क्वेश्चन आपसे बोले बी इज अ सेट ऑफ odd numbers or numbers. Third, C is a set of multiple of 2. ठीक है. So what you can see here, the question is represent the following in tabular form. और फर्स्ट क्वेश्चन है A is a set of natural number. Second is B is a set of odd numbers. Third is C is a set of multiple of 2. And you know, in this type of representation, all the numbers are written in a curly bracket separated by comma. So, what is the answer of this question? If you look the answer of this question, so see, A is a collection. So, what you may write here? A is a collection of what? Natural numbers. And you know it starts from 1. So, make a curly bracket and write 1, 2, 3 and so on up to. Because यहाँ पे natural numbers को define नहीं किया कहाँ तक है? Just you will define up to so on. So this is the collection. देखो A एक collection है जो curly bracket के अंदर सभी एलिमेंट्स को लिखा हुआ है separated by comma. ऐसे ही B is a set of odd numbers. B odd number है, odd number में क्या आएगा? 1 आएगा, 3 आएगा, 5 आएगा, 7 आएगा, 11 आएगा, sorry 9 and so on. These are the collection of यहाँ पे odd dash dash कर देंगे. ठीक है. C is a set of multiple of 2. C का जब मल्टीपल बनाओगे थर्ड में क्या आ जाएगा? टेक द कर्ली ब्रैकेट और 2 का टेबल लिख दो. 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 8, 2 5 जा 10. ठीक है. ऐसे these are the multiple of 2. तो if it is asking to represent the given set in a tabular form, then you will have to write all the elements in a curly bracket and will have to separate each element by comma in this way. Now, how you can write these sets in a tabular properties? Suppose that the question is changed and here it is asking represent the following in properties method. Properties method. Then how can you represent these
अब इसके पहले अब तक देखा आपने कि जो भी सेट थे वो रिप्रेजेंटेशन था किसका, टेबुलर फॉर्म में। अब इसको जब प्रॉपर्टीज मेथड में रिप्रेजेंट करना है तो कैसे रिप्रेजेंट करें? When you want to represent these sets in a properties method, then you have to assign the properties of this element with a single variable. Now, what are the properties of this uh, element of this set? The property of this set is what? These are the natural numbers. Then how will you say? Just you will consider a single variable. You will consider a single variable to assign the properties of these elements. And suppose that x is a single variable. कैसे कहेंगे? x. x such that x is what? X is a natural number. Natural नंबर। बस यहीं पे स्टॉप कर देंगे। मतलब कैसे बोलेंगे? x ऐसा है कि x क्या है? नेचुरल नंबर। मतलब x such that इसको पढ़ते हैं such that x such that x is a नेचुरल नंबर। मीन्स जो भी एलिमेंट्स है उनकी प्रॉपर्टीज को लेकर के आप डिफाइन करते हो और किसी सिंगल वेरिएबल से। सपोज इट हियर आई हैव टेकन x, तो आप x से p ले सकते हो, q ले सकते हो, r ले सकते हो, कोई भी एक वेरिएबल लेकर के उस वेरिएबल से इसकी प्रॉपर्टीज को हम डिफाइन कर सकते हैं। सिमिलरली B is a set of odd numbers। अगर रिप्रेजेंट करना है तो हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? अगर B is a set of odd numbers है तो हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे B इसको? अगर सेकेंड को रिप्रेजेंट करना है तो जस्ट टेक B, make a curly bracket and take a single variable x and write the properties. Now what is the property? B is a set of odd numbers. Then x is that x is what? X is what? Odd number. यहाँ क्या लिखोगे? X is that x is odd number. X is odd number. और उसके बाद brackets. And what was the third? Third was C. C. It is a collection of. It is a multiple of two. C is a set of multiple of two. यहाँ पे कैसे लिखोगे? यहाँ पे कैसे लिखोगे? X such that x equal to L where L equal 1, 2, 3 and so on। दो तरीका है इसको लिखने का। या तो 2L लिख दो क्योंकि L की जगह पे 1 रखेंगे तो 2 आएगा। L के जगह पे 2 रखेंगे 2 into 2, 2 into 3, 2 into 4, 2 into 5। तो या तो 2L लिखे या इसको लिख दे x such that। इसको दो तरीका है लिखने का। या दूसरा तरीका कैसे लिखेंगे? x such that x is a multiple of 2। दूसरा तरीका और करके दिखा देते हैं। और C x such that x is a multiple of 2। मल्टीपल ऑफ दोनों तरीके हैं। आप किसी भी तरीके से आप इसको लिख सकते हैं। आइदर x such that x equal to l और l को डिफाइन कर दो। l क्या होगा? 1, 2, 3 तब भी मल्टीपल आएगा। या वर्ड में लिख दो x such that x is a multiple of 2। Here there are two methods to represent the set. One is properties method, tabular method, and the second one is properties method. In tabular method, all the elements are written, but in tabular form. Sorry, in tabular form, but in properties method, the properties of elements are assigned by a single variable। इसको याद रखना कि प्रॉपर्टीज मेथड में पूरे एलिमेंट को किसी की प्रॉपर्टी को किसी एक वेरिएबल से डिफाइन करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, आर यू क्लियर व्हाट आई हैव टोल्ड यू? पहले आपको बताया कि व्हाट इज सेट्स, जो पॉइंट्स हमने बताया सेट्स के बाद एलिमेंट्स ऑफ सेट्स, थर्ड नोटेशन,
Fourth, representation or representation में there are two parts, tabular और properties. यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है? बोलो, यहाँ तक क्लियर है? सेट्स क्या है, एलिमेंट क्या है, नोटेशन क्या है, रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं? चलो आगे बढ़ते हैं, टाइप्स ऑफ सेट पे चलते हैं। टाइप्स ऑफ सेट, टाइप्स ऑफ सेट्स, टाइप्स ऑफ सेट्स पे चलते हैं। ठीक है, the first one is singleton set. सिंगलटन सेट मीन्स नाम से ही क्लियर है, एक ऐसा एलिमेंट now it is visible. सिंगलटन सेट मीन्स इसके नाम से ही क्लियर है कि एक ऐसा सेट जिसमें सिर्फ जो है एक एलिमेंट मीन्स सेट हैविंग अ सिंगल एलिमेंट, अ सेट हैविंग सिंगल एलिमेंट, सिंगल एलिमेंट इज कॉल्ड अ सिंगलटन। जैसे अगर हम आपसे पूछे कि A is a set of even prime number, A is a set of even prime number, तो even भी है और प्राइम भी है। तो इवन और प्राइम क्या होता है? तो इवन भी होता है और प्राइम भी होता है। तो देखो ए में सिर्फ एक एलिमेंट है टू, तो ए इज व्हाट? अ सिंगलटन। इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं, ए इक्वल एक्स सच दैट एक्स इज इवन प्राइम, इवन प्राइम। ठीक है, और कर दिया है। दिस इज इन टेबुलर फॉर्म एंड दिस इज इन प्रॉपर्टीज मेथड। यहाँ इसकी प्रॉपर्टीज से डिफाइन किया, यहाँ एलिमेंट को लिखा। ठीक है, बट दीज बोथ आर सेम एंड this is what singleton set because there is a single element 2 जो कि इवन भी है और प्राइम भी है। सिंगलटन के बाद सेकेंड जो है फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट, अब फाइनाइट से ही क्लियर है वर्ड से कि a set having countable number of elements। इसमें क्या आएगा? काउंटेबल, काउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट्स। ऐसा सेट जिसमें आप एलिमेंट काउंट कर सको कि कितने एलिमेंट हैं। जैसे ए इज अ कलेक्शन ऑफ ए ई आई ओ यू, ए इज अ कलेक्शन ऑफ वॉवेल। So how many elements of vowel is how many elements of set A is 5? So we have counted, can count कि there are only 5 elements, number 1 2 3 4 5, and it is written like this, number of elements of set A is 5, so it is countable, so it is finite. Now third is infinite set। इनफाइनाइट सेट अनकाउंटेबल, जिसको आप काउंट नहीं कर सकते हो, इसमें क्या आएगा? अनकाउंटेबल, जिसमें मतलब अनकाउंटेबल एलिमेंट्स हो। सेट तो है, अनकाउंटेबल है, आप काउंट नहीं कर सकते। जैसे
A is a set of natural number. अगर नेचुरल नंबर सेट है तो 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन अप टू इनफाइनाइट। यहाँ पे आपको पता तो है नेचुरल नंबर है, लेकिन कितने नेचुरल नंबर है ये पता नहीं है, अनकाउंटेबल है। सो दिस इज इनफाइनाइट। So you have seen infinite. In this set, you may count the number of elements, but in this set, you can't count the number of elements because it is uncountable. You have seen here what are the singleton set, what is finite set, what is infinite sets. The next one is 4. Empty set, empty sets or null sets और वाइड सेट्स, इसके थ्री नेम्स हैं। इसके थ्री नेम्स होते हैं, आइदर इनमें से एम्प्टी सेट और नल सेट और वाइड सेट, सब एक ही नाम। ठीक है, बेस नाम से ही क्लियर है कि हैविंग नो एलिमेंट, अगर कोई भी एलिमेंट नहीं होता है दैट इज कॉल्ड व्हाट, एम्प्टी सेट, and it is represented by like this, ऐसे represent करते हैं। This is read as file और या तो कर्ली ब्रैकेट, ठीक है, क्लोज कर्ली ब्रैकेट इस टाइप का, या ऐसे इनके बीच में अगर जीरो भी लिख दिया ना तो वो एलिमेंट कंसीडर किया जाएगा। So this empty set or null set is or void set is denoted by empty close curly bracket या file। फॉर एग्जाम्पल ये is a null set, तो या तो ऐसे लिखो या is having no element, आप क्या बोलोगे, having no element, जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं होता है, कोई एलिमेंट नहीं होता है, दैट इज कॉल्ड व्हाट, नल सेट या वाइड सेट या एम्प्टी सेट, जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं होता। फिर इक्वल सेट से two sets are said to be equal if they have same number of element and same element। जैसे मान लो A is a set having element A, B, C and B is a set also having element A, B, C। तो N A equal N B, जितने की एलिमेंट ए में है उतने ही एलिमेंट बी में है और वही एलिमेंट है, मीन्स हैविंग सेम एंड इक्वल। क्या बोलोगे, हैविंग सेम एंड इक्वल, मतलब सेम एलिमेंट भी हो और उतने ही नंबर के एलिमेंट हो, अगर इसमें 3 इसमें भी 3 और वही एलिमेंट हो तो यू विल से these two are equal set and you will write like this A equal B। इसको ऐसे लिखोगे A equal B, ये लिखने का तरीका है। A equal B मीन्स A के जो एलिमेंट B में है और B के एलिमेंट A में है, जितने एलिमेंट A के हैं उतने ही एलिमेंट B के हैं और सेम वही एलिमेंट, तो these are the equal set। The next one is equivalent set। Equivalent set, what
the equal difference between equal and equivalent? देखो, in this case, the set A are said to be equivalent of set B. देखो, A B के इक्विवेलेंट तो है, मतलब जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स A में है उतने ही नंबर ऑफ एलिमेंट्स इसमें B में है, बट इट इज नॉट श्योर कि द एलिमेंट्स आर सेम, वही नंबर है। हो सकता है कि A में एलिमेंट जो है, सॉरी, A के एलिमेंट A B C है और B के एलिमेंट जो है 1 2 3 है। एलिमेंट्स आर डिफरेंस, देखो यहाँ से इसके ए बी सी है, इसके 1 2 3 है, तो एलिमेंट तो डिफरेंट है, बट काउंटिंग में नंबर ऑफ एलिमेंट्स एंड नंबर ऑफ बी ए बी आर सेम, सो यू विल से दीज आर द इक्विवेलेंट बट नॉट इक्वल। ये अंतर है इक्विवेलेंट और इक्वल। इक्विवेलेंट में नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होंगे, जरूरी नहीं है कि वही एलिमेंट हो। इक्वल में एलिमेंट भी वही होने चाहिए और नंबर ऑफ एलिमेंट भी सेम होने चाहिए, तभी जाके आपको वो इक्वल एलिमेंट्स इक्वल से बोलते हैं। सेवेंथ, यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट ये होगा लार्जेस्ट सेट होता है, लार्जेस्ट सेट, ठीक है। द लार्जेस्ट सेट इज कॉल्ड यूनिवर्सल सेट एंड इज डिनोटेड बाय स्मॉल यू, इज डिनोटेड बाय यू। मतलब एक ऐसा सेट जिससे अदर सेट बने हो, जैसे देखो अगर ए एक एलिमेंट सेट है जिसमें 1 2 एलिमेंट है, और एक बी है जिसमें 2 3 4 एलिमेंट है, और एक सी है जिसमें 1 3 5 एलिमेंट है, और एक यू है जिसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। Now what you can see here, कि in this set the elements are from 1 to 10 and all the elements of A, B, C are from this element. So this is the largest set because it has all the elements of this set. So this is the universal set. मतलब एक ऐसा सेट जिसके सभी एलिमेंट, जिसके में जितने भी एलिमेंट सेट्स हो उनके सबके एलिमेंट इसमें हो, वही लार्जेस्ट सेट को यूनिवर्सल सेट बोलते हैं। तो दिस इज द फर्स्ट यूनिवर्सल सेट, दिस इज यूनिवर्सल, दिस इज कॉल्ड यूनिवर्सल सेट। क्लियर? यूनिवर्सल सेट क्लियर है? यूनिवर्सल सेट मीन्स द लार्जेस्ट सेट having all the elements of the given set is known as universal set. Now, some operations. The first one is union of sets. Union of sets. In this set, sorry, it is, you may say just like a मतलब including all the elements of the given sets are known as union of sets. कैसे? देखो, if A is a set having element 1 2 3 and B is a set having element 3 4 5, then what is that? Union A union B. In A union B, all the elements are considered but no element is repeated. मतलब पहले इसके एलिमेंट लिखते हैं 1 2 3 और 3 इसमें दोनों में एक ही बार लिखेंगे, फिर 4 and 5. So this is known as union of set. Means all the elements are considered in union. The second one is intersection.
इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। इसमें क्या होगा, ओनली कॉमन एलिमेंट्स आर कंसीडर, कॉमन एलिमेंट्स आर कंसीडर। जैसे देखो, अगर ए में 1 2 3 है और बी में 2 3 4 5 एलिमेंट्स, then what is A intersection B? Only 2 and 3. These two are the common elements, so 2 3 are the intersection elements. Clear? Now the next one is, next operation is third, difference of set. Difference of set. A minus B means element of A, element of A which are not in B। ए के वे एलिमेंट जो बी में नहीं है। जैसे देखो, ए के एलिमेंट है 1 2 3 और बी में एलिमेंट है 3 4 5, 3 4 5। देन व्हाट इज ए माइनस बी? ए माइनस बी का मतलब ए के एलिमेंट जो बी में नहीं है। ए के कौन से एलिमेंट बी में नहीं है? 1 और 2। ये दो एलिमेंट हैं जो बी में नहीं है। देन यू विल से 1 and 2 ए माइनस बी। ऐसे इफ आई आस्क कि बी माइनस ए, बी माइनस ए मीन्स द एलिमेंट्स ऑफ बी which are not in A। Tell me students, 4 and 5, because 4 and 5 are the elements which are not in A. 4 and 5 are the elements of B minus A. Now see subset. Subset. So A is said to be subset of B। ए बी का सबसेट होगा जब ए के सभी एलिमेंट किसमें हो? बी में। ठीक है? ए इज सेड टू बी सबसेट ऑफ बी इफ ऑल द एलिमेंट्स आर ए इज इन बी and it is written as A is subset of S। A is subset of B। A के सभी एलिमेंट B में है। जैसे A के अगर मान लो A में 1 2 3 है और B एक सेट है जिसमें 1 2 3 है, then you may say कि all the elements of A 1 2 3 are in B, so you may write कि A is subset of। अगर A के सभी एलिमेंट B में है तो आप बोल सकते हो कि A जो है B का सबसेट है। ठीक है? Now number of subsets, number of subsets of a set is 2 to the power n, where n is what? N equal number of elements, elements of a set। मतलब अगर कोई सेट है तो उसके कितने सबसेट बनेंगे? 2 टू द पावर n, जो कि n क्या होगा? नंबर ऑफ एलिमेंट्स होगा। पाई, दूसरा पाई इज अ सबसेट ऑफ ईच सेट।
फाइव हर एक सेट का सबसेट होता है और each set is subset of itself। इस चीज को याद रखना कि हर सेट जो है खुद का एक सबसेट होता है। पाई तो हर सेट का सबसेट होता ही होता है, हर सेट अपने खुद के सेट का सबसेट होता है। नाउ क्वेश्चन कैसे आएगा इसमें? एग्जाम्पल आपसे बोल दे फाइंड द सबसेट ऑफ सेट ए इक्वल टू 3। ऐसे अब आपसे कह दिया ए के सबसेट बताओ, तो ए के कितने एलिमेंट है? देखो एन नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए इज 2 1 and 2, तो नंबर ऑफ सबसेट कितने हो जाएंगे? सबसेट सबसेट कितने हो जाएंगे? 2 to the power n, और n कितना है? 2 है, 2 to the power 2 इक्वल 4, यानी नंबर ऑफ सबसेट जो है 4 होंगे। 4 में एक तो पाई होता ही होता है और एक सेट अपने सेट खुद का सबसेट होता है। तो सबसेट ऑफ ए अगर यहाँ पे फाइंड करेंगे, सबसेट ऑफ ए, ठीक है, तो पहले तो एक पाई होता है, नहीं यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट नहीं है, एक पाई होता है और एक एलिमेंट पहले लिख लो, एक 1 हो गया और एक सॉरी 2 और 3 है ना, एक 2 हो गया और एक 3 हो गया, और एक खुद जो है सेट 2 और 3 ऐसे। तो दीज आर द 4 सबसेट 1 2 3 4। एक देखो पाई तो सबसेट होता ही होता है और एक खुद सेट जो है अपने सेट का सबसेट होता है, और बाकी एक एलिमेंट ये इसका सबसेट हो गया, ये इसका सबसेट हो गया। ये कंडीशंस है। मींस a set is said to be a subset of set if all the elements of that set are in a particular set। Okay students, can you find example 2? Can you find all the subsets of set A, B, C? Can you find all the subset of set A having element A, B, C? Tell me. वैसे तो टाइम लगभग हो चुका है, लास्ट करते हैं इसको बता के। देखो नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ थ्री नो 3 1 2 3, तो नंबर ऑफ अगर सबसेट बोले, नंबर ऑफ सबसेट्स that is equal to 2 to the power 3 equal 8। there will be a 8 subset। और कैसे बनाएंगे सबसेट्स ऑफ ए? देखो सबसेट्स ऑफ ए, पहले तो एक पाई बनेगा और दूसरा खुद का सेट बनेगा ए बी सी, ये दो तो पहले बना लेंगे, बाकी 6 और बना लेंगे। कैसे? पहले एक एक एलिमेंट लिख लो, एक एक ए बी और सी ऐसे बना लिया, और फिर दो दो एलिमेंट लेंगे। कौन कौन से? ए बी, फिर बी सी और फिर ए सी। अब देखो काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8, और इस पूरे को कर्ली ब्रैकेट से ऐसे क्लोज बंद कर देना। अगर क्लोज कर दोगे तो दूसरा सेट बन जाएगा, इसलिए सबसेट को ऐसे ही लिखते हैं, पूरे को कर्ली ब्रैकेट में क्लोज नहीं करते हैं। ध्यान देना, यहाँ से पूरे को क्लोज मत कर देना, क्लोज कर देंगे तो कुछ और बन जाएगा। इसलिए सबसेट लिखते समय ध्यान देना कि सबको सेपरेटेड कॉमा से ही लिखना है, और हर एक सेट एक कर्ली ब्रैकेट के
सबसेट एक कर्ली ब्रैकेट अंदर होंगे, उसके एलिमेंट उसके अंदर होंगे, लेकिन पूरे का कर्ली ब्रैकेट नहीं बनेगा। क्लियर? आज के लिए बस इतना ही, फिर इसके आगे कल डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स। थैंक यू।